تو بھی بہت سے لوگ عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے. ان میں سے کچھ رہنما بھی شامل تھے، لیکن وہ اس کا اعلانیہ اقرار نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ فریسی ہمیں یہودی جماعت سے خارج کر دیں گے. اصل میں وہ اللہ کی عزت کی نسبت انسان کی عزت کو زیادہ عزیز رکھتے تھے. پھر عیسیٰ پکار اٹھا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ نہ صرف مجھ پر بلکہ اس پر ایمان رکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. میں نور کی حیثیت سے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو بھی مجھ پر ایمان لائے وہ تاریکی میں نہ رہے. جو میری باتیں سن کر ان پر عمل نہیں کرتا میں اس کی عدالت نہیں کروں گا، کیونکہ میں دنیا کی عدالت کے لیے نہیں آیا بلکہ اسے نجات دینے. جو مجھے رد کر کے میری باتیں قبول نہیں کرتا تو ایک ہے جو اس کی عدالت کرتا ہے. میرا پیش کیا گیا کلام ہی قیامت کے دن اس کی عدالت کرے گا، کیونکہ جو کچھ میں نے بیان کیا وہ میری طرف سے نہیں ہے. مجھے بھیجنے والے باپ ہی نے مجھے حکم دیا کہ کیا کہنا اور کیا سنانا ہے. میں جانتا ہوں اس کا حکم ابدی زندگی تک پہنچاتا ہے. چنانچہ جو کچھ میں سناتا ہوں وہی کچھ ہے جو باپ نے مجھے بتایا ہے. فسح کی عید اب شروع ہونے والی تھی. عیسیٰ جانتا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جانا ہے. گو اس نے ہمیشہ دنیا میں اپنے لوگوں سے محبت رکھی تھی، لیکن اب اس نے آخری حد تک ان پر اپنی محبت کا اظہار کیا. پھر شام کا کھانا تیار ہوا. اس وقت ابلیس شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کے دل میں عیسیٰ کو دشمن کے حوالے کرنے کا ارادہ ڈال چکا تھا. عیسیٰ جانتا تھا کہ باپ نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے اور کہ میں اللہ میں سے نکل آیا اور اب اس کے پاس واپس جا رہا ہوں. چنانچہ اس نے دسترخوان سے اٹھ کر اپنا لباس اتار دیا اور کمر پر تولیہ باندھ لیا. پھر وہ باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور بندھے ہوئے تولیے سے پہنچ کر خشک کرنے لگا. جب پترس کی باری آئی تو، آپ میرے پاؤں دھونا چاہتے ہیں خداوند؟ اس وقت تو نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، پر بعد میں یہ تیری سمجھ میں آ جائے گا. میں کبھی بھی آپ کو میرے پاؤں دھونے نہیں دوں گا. اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ تیرا کوئی حصہ نہیں ہوگا. خداوند، پھر نہ صرف میرے پاؤں دھوئیں بلکہ میرے ہاتھوں اور سر کو بھی. جس شخص نے نہا لیا ہے اسے صرف اپنے پاؤں کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پورے طور پر پاک صاف ہے. تم پاک صاف ہو. لیکن سب نہیں. عیسیٰ کو معلوم تھا کہ کون اسے دشمن کے حوالے کرے گا، اس لیے اس نے کہا کہ سب کے سب پاک صاف نہیں ہیں. ان سب کے پاؤں دھونے کے بعد عیسیٰ دوبارہ اپنا لباس پہن کر بیٹھ گیا. تم سمجھتے ہو میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟
तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहकर मुखातिब करते हो, और ये सही है क्योंकि मैं यही कुछ हूं। मैं तुम्हारे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, इसलिए तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। मैंने तुमको एक नमूना दिया है ताकि तुम भी वही करो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुमको सच बताता हूं कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, न पैगंबर अपने भेजने वाले से। अगर तुम ये जानते हो तो इस पर अमल भी करो, फिर ही तुम मुबारक होगे। मैं तुम सबकी बात नहीं कर रहा। जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन कलाम मुक़द्दस की इस बात का पूरा होना जरूर है कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। मैं ऐसा होने से पहले तुम्हें बता रहा हूं, ताकि जब वो पेश आए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। मैं तुमको सच बताता हूं, जो उसे कबूल करता है जिसे मैंने भेजा है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। इन अल्फाज के बाद ईसा निहायत मुस्तरब हुआ और कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम इसे एक मुझे दुश्मन के हवाले कर देगा। शागिर्द उलझन में एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि ईसा किसकी बात कर रहा है। एक शागिर्द जिसे ईसा प्यार करता था उसके करीब तरीन बैठा था। उससे दरियाफ्त करके वो किसकी बात कर रहे हैं? उस शागिर्द ने ईसा की तरफ सर झुकाकर पूछा, खुदावंद ये कौन है? जिसे मैं रोटी का लुकमा शोरबे में डुबो कर दूं, वही है। फिर लुकमे को डबोकर उसने शमाउन अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। जो ही यहूदा ने यह लुकमा ले लिया, इब्लीस उसमें समा गया। जो करना है जल्दी से कर ले। लेकिन मेज पर बैठे लोगों में से किसी को मालूम ना हुआ कि ईसा ने ये क्यों कहा। बास का ख्याल था कि चूंकि यहूदा खजांची था, इसलिए वो उसे बता रहा है कि ईद के लिए दरकार चीजें खरीद ले या गरीबों में कुछ तकसीम कर दे। चुनाचे ईसा से ये लुकमा लेते ही यहूदा बाहर निकल गया। रात का वक्त था। यहूदा के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और अल्लाह ने उसमें जलाल पाया है। चूंकि अल्लाह को उसमें जलाल मिल गया है, इसलिए अल्लाह अपने फर्जंद को जलाल देगा, और वो ये फौरन देगा। मेरे बच्चों, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे पास ठहरूंगा। तुम मुझे तलाश करोगे, और जो कुछ मैं यहूदियों को बता चुका हूं वो अब तुमको भी बताता हूं। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं तुमको एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो सब जान लेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो।
खुदावंद आप कहाँ जा रहे हैं? जहां मैं जा रहा हूं वहां तू नहीं आ सकता, पर बाद में तू मेरे पीछे आ जाएगा। खुदावंद मैं आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तू मेरे लिए अपनी जान देना चाहता है? मैं तुझे सच बताता हूं कि मुर्ख के मांग देने से पहले पहले तू 3 मरतबा मुझे जानने से इनकार कर चुका होगा। तुम्हारा दिल न घबराए, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बेशुमार मकान हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या मैं तुमको बताता? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो वापस आकर तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, और जहां मैं जा रहा हूं उसकी राह तुम जानते हो। खुदावन, हमें मालूम नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर हम उसकी राह किस तरह जाने? राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। अगर तुमने मुझे जान लिया है तो मेरे बाप को भी जान लोगे, और अब से तुम उसे जानते हो और उसको देख लिया है। ऐ खुदावन, बाप को हमें दिखा, बस यही हमारे लिए काफी है। मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। फिर तू क्यों कहता है बाप को हमें दिखाएं? क्या तू ईमान नहीं रखता कि मैं पाप में हूं और पाप मुझ में है? जो बातें मैं तुमको बताता हूं मेरी नहीं, बल्कि मुझ में रहने वाले पाप की तरफ से है। वही अपना काम कर रहा है। मेरी बात का यकीन करो कि मैं पाप में हूं और पाप मुझ में है, या कम से कम उन कामों की बिना पर यकीन करो जो मैंने किए हैं। मैं तुमको सच बताता हूं, जो मुझ पर ईमान रखे वो वही काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि उनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूं, और जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगो मैं ही दूंगा, ताकि बाप को फर्जंद में जलाल मिल जाए। जो कुछ तुम मेरे नाम में मुझसे चाहो वो मैं करूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, और मैं बाप से गुजारिश करूंगा तो वो तुमको एक और मददगार देगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी सच्चाई करूं जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि वो ना तो उसे देखती ना जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर रहेगा। मैं तुमको यतीम छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे पास वापस आऊंगा। थोड़ी देर बाद दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जिंदा हूं इसलिए तुम भी जिंदा रहोगे। जब वो दिन आएगा तो तुम जान लोगे कि मैं अपने बाप में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा बाप प्यार करेगा। मैं भी उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। यहूदा अस्करियोती नहीं ने पूछा, खुदावन, क्या वजह है कि आप अपने आप को सिर्फ हम पर जाहिर करेंगे और दुनिया पर नहीं? अगर कोई मुझे प्यार करे वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। मेरा बाप ऐसे शख्स को प्यार करेगा और हम आकर उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। ये सब कुछ तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन बाद में रूह कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा तुमको सब कुछ सिखाएगा। ये मददगार तुमको हर बात याद दिलाएगा जो मैंने तुमको बताई है। सलामती। मैं तुम्हारे पास छोड़ जाता हूं।